Good afternoon, my dear students. I welcome you in today's class. Today I am going to teach you English, and the topic is The Beggar, part 3. Already I have taught you part 1 and 2 of this lesson, so it's time to begin part 3 of this lesson. So I welcome you once again. So we saw that the beggar was mumbling when he was caught by the advocate. He was just lying and he called himself a student or a teacher to whoever he begged. Okay. Then when Sergi the advocate scolded him for his lying, the beggar became angry, and he also threatened the advocate that he would call the police. So neither he was a student, neither he was a teacher. He admitted afterwards to the advocate, and then he said that he wanted to work, he was searching for a work, but he couldn't get a job or work so that he could spend his living. He was just suffering from hunger, misery, and he was just roaming here and there like a homeless wanderer. At last, Sergi, the advocate, he agrees to give him a job, give him work, and Sergi, the advocate, he gave the beggar the job of chopping woods, and then he called his maid servant, Olga, to take the beggar along with her and give him work in the yard. And after that, what happens? Let's see. Sergi's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. So what happened? This fellow, the beggar, was very weak and feeble, okay, and he was not having the strength to chop the piece of wood, because whenever he just set the piece of wood to chop it, that wood just slipped and fell down, okay. So this thing, Sergi the advocate thought about the beggar, that the beggar was weak, and so his anger had vanished, and now Sergi was feeling sorry for giving him manual and physical work. तो क्या हुआ कि सर्जी का गुस्सा अभी ठंडा हो गया था, गायब हो गया था, क्योंकि अभी उसके मन में यह बातें आ रही थी। सर्जी एडवोकेट जो है, उसके मन में यह बातें आ रही थी और दुखी हो रहा था कि बेकार ही उस आदमी को, जो आदमी कुछ काम करना नहीं चाहता है, पियक्कर जो है, शराब पीने वाला व्यक्ति जो कि बीमार है, उसको शारीरिक काम दिया है,
तो बाद में इसको बहुत ही दुख हुआ। किसको? द एडवोकेट। ओके। एन आवर लेटर Olga came in and announced that the wood had all been chopped. करीब 1 घंटे बाद ओल्गा जो सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट जो थी, वो सरजी के पास आती है, एडवोकेट के पास आती है, अपने मालिक के पास, और यह कहती है कि सारे लकड़ी काट दिए गए हैं, टुकड़ों में काट दिए गए हैं। All the wood had been chopped to pieces. So she admitted this before the advocate. Good. Gave him half a ruble, said सरजी। तब सरजी बोलते हैं एडवोकेट, अच्छी बात है, लकड़ियां काट दिया है वो बेगर ने, तो अच्छी बात है, उसे आधा रूबल पैसा दे दो, हाफ ए रूबल, गिव हिम हाफ ए रूबल। रूबल एक करेंसी है, ठीक है। किसने कहा? सरजी द एडवोकेट। ओके। इफ ही वॉन्ट्स टू he can come back and cut wood on the first day of each month. और अगर वो चाहे, अगर वो बेगर चाहे तो हर महीने की पहले तारीख को यहाँ आकर हमारे लिए लकड़ियाँ काट सकता है, लकड़ियों को चीर फाड़ कर सकता है, लकड़ियाँ का काम कर सकता है। We can always find work for him. और जब भी पहले हर महीने का पहला तारीख को आएगा तो उसके लिए हम लोग काम का अरेंजमेंट कर देंगे, उसके लिए जॉब प्री अरेंज करके रखेंगे। तो ये एडवोकेट ने कहा, किससे कहा? ओल्गा से, कि उसे बता दो कि हर महीने पहले तारीख को आ जाने के लिए, और उस दिन आकर वो लकड़ियां चीरने का काम, काटने का काम कर लेगा। नेक्स्ट, on the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. पहली तारीख को, हर पहली तारीख को ये जो व्यक्ति है, जो भिखारी है, इसको आवारा कहा गया है ना, क्योंकि इसके माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है, वो अकेला है, ठीक है। तो अभी उसकी जिंदगी एक लावारिस की जैसी है, ठीक है, बिकॉज he is having no relatives, nobody. ओके। जिस प्रकार से रिलेशन आगे बढ़ता है उससे पता चल जाता है, ठीक है। तो वेव का मतलब होता है आवारा। तो पहला मंथ के पहले दिन ये जो आवारा व्यक्ति है वो अब दिखाई दिया और फिर आधा रूबल पैसे कमाया। वो कार्य किया, वो एडवोकेट के घर आया और लकड़ियां चीरने का काम किया, ठीक है, और उसे फिर आधा रूबल पैसा दिया गया। ओके। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, और मुश्किल से वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, मुश्किल से, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि वो शराबी था, ठीक है। एक तो शराबी था, जो शराब पीते पीते उसका हाल बेहाल हो गया था, मतलब वो बीमार पड़ गया था, उसका सारा जो शक्ति है छिन्न हो गए थे, मतलब खत्म हो गए थे, वो बहुत कमजोर हो गया था। तो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसके पैर डगमगा रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो फिर भी उसे हाफ रूबल दिया गया, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, फिर भी वो ये कार्य किया। फ्रॉम दैट डे ऑन he often appeared in the yard and every time work was found for him. और उस दिन से ये जो बेगर है, लस्कॉफ इसका नाम है, ये हर महीने उस यार्ड में, आंगन में दिखाई पड़ता था और उसके लिए काम खोजा जाता था, लकड़ियों का या कुछ और घरेलू कार्य जो कर सके, वैसे कार्य उसके लिए खोजा जाता था, ठीक है। Now he would shovel snow. अब वो क्या करता था? बेलचा जो होता है ना, बेलचा से वो
स्नो को मतलब बर्फ को हटाता था, बर्फ को हटाने का भी कार्य था, जहां तहां जम गया था बर्फ आंगन में, हाँ, और माने अनवांटेड जगह पर बर्फ का जमावड़ा था, तो सोवेल से, सोवेल होता है एक बेलचा होता है, उसको से बर्फ को हटाया जाता है, ठीक है। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और क्या कार्य दिया गया था उसको, जो लकड़ियों का शेड है उसको ऑर्डर में रखना, उसको सही से सजा कर रखना, ठीक है। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, और क्या कार्य था, डस्ट हटाना, डस्ट को झाड़ना, आउट ऑफ रग्स, रग्स मतलब कालीन वगैरह जो रहते हैं उसको बोलते हैं रग्स, ठीक है। कालीन और जो बेडशीट वगैरह रहता है वहां से सारे डस्ट को झाड़ना, ठीक है। बेडशीट होगा या गद्दा होगा, ठीक है, गद्दे से वो पीट पीट कर डस्ट को झाड़ते हैं, ऐसा भी कार्य किया जाता है ना। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉकपेक्स, और अब उसे 20 से 30 कॉकपेक्स मिलने लगे, ठीक है। हर समय उसको जब भी कार्य करता तो 20 से 40 कॉकपेक्स उसको दिया है। कॉकपेक्स भी एक करेंसी है, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वेर सेंट आउट टू हिम, और एक बार उसके लिए एक पुराने ट्राउजर के पेयर भी उसको दिया गया था, एक जोड़ा ट्राउजर्स भी दिए गए थे उसको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। When Sergi moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. जब सरजी दूसरे घर में शिफ्ट हुए, ठीक है, जब सरजी दूसरे घर में शिफ्ट हुए, उन्होंने इस बेगर को हायर किया अपने पास सामान ढोने के लिए, ठीक है। पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, फर्नीचर सारा पैक करने के लिए और उसे एक जगह से दूसरे जगह ढोने के लिए उसको हायर किया, उसे किराए पर रखा, किसको, बेगर को। दिस टाइम द वेफ वाज सॉबर, अब की बार ये जो आवारा आया था, आई मीन दिस बेगर हैज कम, ही वॉज वेरी सीरियस, सॉबर का मतलब बहुत सीरियस, गंभीर, ओके। ग्लूमी एंड साइलेंट, ग्लूमी एंड साइलेंट, ग्लूमी का मतलब होता है सैड, उदास, मतलब अभी बहुत सीरियस दिखाई दे रहा था, उदास भी दिखाई दे रहा था और बहुत शांत दिखाई दे रहा था एकदम, ठीक है। ही हार्डली टच द फर्नीचर, वो मुश्किल से फर्नीचर को टच करता था, वो बिल्कुल फर्नीचर को मुश्किल से टच करता था, उसे रखा गया फर्नीचर ढोने के लिए और फर्नीचर को ठीक सही जगह रखने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, सारे ऑर्डर में रखने के लिए, लेकिन हार्डली वो फर्नीचर को टच करता था। अकेले तो उठाना नहीं पड़ता फर्नीचर, और भी लोग रहते होंगे साथ में, धीरे से हाथ बस वैसे टच करता होगा या नहीं करता होगा, ठीक है। इतना कमजोर था, ही वॉज सो आइडल एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, और क्या करता था, सामान वैगन्स, कैरेज पे, गाड़ी पर, हाँ, सामान रखकर ले जाया जाता था, ठीक है। जैसे पिकअप वैन होता है ना, वैसे कैरेज होते थे, तो कैरेज पर रखकर ढोया जाता था सामान, तो उसके पीछे पीछे बस जाता था, अपने सिर को लटकाए हुए, हैंगिंग हिज हेड, ठीक है, सिर को ऐसे लटकाए हुए वो पीछे पीछे कैरेज के पीछे पीछे जाता था। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और कभी कभी वो बहानेबाजी भी नहीं करता था बिजी होने का। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, हाँ, जो लोग काम करते हैं डायरेक्टर को देखकर, किसी को देखकर, अपने मालिक को देखकर जहाँ काम करते हैं, हाँ, तो और थोड़ा एक्स्ट्रा काम और थोड़ा उत्तेजना में काम करना, शो करना शुरू कर देते हैं कि कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना काम कर रहे हैं, ऐसे शो करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहानाबाजी भी नहीं कर पा रहा था व्यस्त होने का, कम से कम जब सरजी एडवोकेट आगे कम से कम
हाँ, हाथ तो लगाता कोई अलमारी कोई फर्नीचर को टच तो करता, उठाने का या इधर उधर शिफ्ट करने का, लेकिन नहीं, उसे बहानेबाजी भी नहीं आती थी बिजी होने का. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness. और वो क्या करता था? वो कांपता था ठंड में, बहुत कमजोर था, उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, ऊनी कपड़े भी नहीं थे, अच्छे ऊनी कपड़े, और वो कांप रहा था और बहुत ही परेशान हो जा रहा था. एंड बिकेम एम्बेरेस्ड, ही फेल्ट वेरी डिफिकल्ट. ओके, एम्बेरेस्ड मीन्स ही फेल्ट वेरी डिफिकल्ट. When the carter jeered at him for his idleness, जब जो गाड़ी में सवार होकर जो लोग जाते थे और जो ड्राइवर रहता था, वो सब इसका जब मजाक उड़ाते थे. जियड का मतलब होता है मजाक उड़ाना. उसके इस लेजीनेस का, आइडलनेस का मतलब लेजीनेस, उसके सुस्तीपन का, हाँ सुस्तीपन का, या वो सुस्त था, उसके सुस्ती को देखकर जब लोग उसके मजाक उड़ाते थे, कार्टर्स उसको कहा गया है, गाड़ी वाले जो गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, तो भी उसे बहुत बुरा लगता था. कोई उसका मजाक उड़ाता था, वो मजाक का पात्र बन गया था क्योंकि कमजोर था, दुबला पतला था, बीमार था. ओके, एंड ही वाज आल्सो आइडल, ही वाज वेरी लेजी. ओके, हिज फेबलनेस, तो उसके कमजोरी के कारण भी हंसते थे सब, उसके कमजोरी का ही मजाक उड़ाते थे कि कितना दुबला पतला है, कमजोर है, सिंगल हड्डी. हाँ, एंड स्टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, और उसके फटे चित्रे जो ओवरकोट थे, जो फटे चित्रे सिकुड़े मैले कुचैले जो कोट पहना हुआ था, उसको देखकर उस सब का ये हंसी का पात्र बन गया था. कौन? द बेगर. क्लियर? After the moving was over, Sarji sent for him. जब सामान सब शिफ्ट हो गया, नए घर में सामान जब सब शिफ्ट हो गया, तो सरजी ने इसे भेज बुलाया. किसको? बेगर को, लस्कॉफ को. उसका नाम है लस्कॉफ. क्लियर? क्या हो गया? सॉरी. Next, well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. और एडवोकेट उसको बुला भेजा, उस बेगर को, लस्कॉफ को, और उसको 1 रूबल देते हुए, 1 रूबल उसे देते हुए यह कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरा जो शब्द है, मेरी बोली का प्रभाव तुम पर पड़ने लगा है और तुम पहले से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो काम में. कौन बोला? एडवोकेट बोला. किसको? बेगर को. कि अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम में सुधार हो रहा है और मेरे बातों का प्रभाव तुम पर पड़ा है. ओके, हियर इज फॉर योर पेन्स. ये तुम्हारे दर्द के लिए, तुम्हारे जो तकलीफ तुमने किया है, तुमने जो मेहनत किया है, उसके लिए है. पेन्स का मतलब मेहनत भी होता है, हार्ड वर्क. ओके, आई सी यू आर सॉबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. व्हाट इज योर नेम? और सरजी जो एडवोकेट है बोला, बेगर से पूछ बैठा कि मैं देखता हूं कि तुम बहुत ही सॉबर हो, तुम बहुत सीरियस हो. एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और तुम्हें काम करने में कोई परेशानी नहीं है. कौन कहता है? एडवोकेट कहता है. किससे कहता है? लस्कॉफ से, बेगर से. ओके, और फिर उसका नाम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? एडवोकेट उससे उसका नाम पूछता है. ओके, लस्कॉफ. ये बेगर रिप्लाई क्या करता है? बोलता है मेरा नाम लस्कॉफ है. लस्कॉफ इज माई नेम. ओके, well Laskov, I can now offer you some other cleaner employment. फिर एडवोकेट सरजी बोलते हैं ठीक है लस्कॉफ, अच्छी बात है, दोनों में बातचीत होती है. मैं तुम्हें
इससे भी अच्छा काम दिलवा सकता हूं, साफ सुथरा तुम्हें काम दिलवा सकता हूं, जिसमें मेहनत वाली बात नहीं, जिसमें शारीरिक मेहनत वाली बात नहीं है। ओके, कैन यू राइट? और फिर पूछा उससे, क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू राइट? तो बेगर बोलता है, लस्कॉफ बोलता है, जवाब देता है, आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तब सरजी द एडवोकेट, he says, then take this letter to a friend of mine tomorrow and he will be given some copying to do। और तब सरजी क्या करता है? बोलता है, ठीक है तुम लिखने का काम कर सकते हो तो अच्छी बात है, तब एक काम करो, ये लेटर जो है, ये लेटर को लेकर जाओ, ये लेटर को लेकर जाओ, ठीक है, इस लेटर को कल लेकर जाओ, मेरे एक फ्रेंड है उसके पास, मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र हैं, उनके पास लेकर जाओ और तुम्हें कुछ कॉपी करने का काम, कुछ लिखने पढ़ने का काम तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। और तब एडवोकेट कहता है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है वो बेगर, कहता है ठीक है खूब मेहनत करो, शराब नहीं पीना, शराब को छोड़ दो, शराब कभी फायदा नहीं करेगा, और जरूर याद रखना हमने जो बात तुमसे कही है। एडवोकेट उसको बोलता है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, तुम इस ये लेटर को लेकर जाओ और तुम्हें काम मिल जाएगा, लेकिन याद रखना कोई शराब मत पीना, मेरे बातों को याद रखना, गुड बाय। लास्ट में उसको बाय बाय बोलता है, उसको विदा कर देता है एडवोकेट को। Pleased at having put a man on the right path, Sergey tapped Luskov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting। और बहुत ही संतुष्ट हुआ ये जो एडवोकेट हैं सरजी, ये बहुत संतुष्ट हुए, और संतुष्ट होने के बाद उस आदमी के दाहिने कंधे पर ऐसा करके हाथ रखते हैं, अपने हाथ से उसको टैप करते हैं, ठीक है, दया से, और उसे अपना हाथ भी देते हैं, मतलब उसे हाथ भी मिलाते हैं, लस्कॉफ से हाथ भी मिलाते हैं, ये जो सरजी एडवोकेट है वो हाथ भी उसे मिलाते हैं, ठीक है, और तब उसको विदा करते हैं। ओके, जब एक दूसरे से दोनों अलग होते हैं उसी वक्त ये हाथ मिलाते हैं, कौन? सरजी द एडवोकेट। किससे? बेगर से। लस्कॉफ टुक द लेटर and from that day forth came no more to the yard for work। लस्कॉफ ने वो चिट्ठी अपने हाथ में ले ली, अपने हाथ में ले लेता है, और उस दिन के बाद लस्कॉफ फिर उस आंगन में नहीं दिखाई देता है जहां की लकड़ियों का ढेर रखे रहते हैं, ठीक है, अब वो कार्य करने के लिए वहां पर नहीं आता है, लकड़ियों का चॉपिंग करने के कार्य से वो वंचित हो जाता है, ठीक है, उसे दूर कर दिया जाता है, अपने आप को दूर कर लेता है, ठीक है, क्योंकि कोई कॉपिंग वाला कार्य करने के लिए वो निकल पड़ता है। ओके, उस दिन के बाद दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट स्लाइड, द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज सेशन, पार्ट 3। 2 years went by, 2 साल बीत गए। ओके, 2 years went by means 2 years passed, okay। Then one evening, as Sergey was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap। okay, ध्यान देंगे, लंबी सेंटेंस है। 2 साल बीत गए, तो एक दिन शाम को क्या होता है, सरजी जो एडवोकेट हैं वो टिकट काउंटर, टिकट विंडो जो होता है थिएटर का, टिकट विंडो के पास खड़े रहते हैं और अपने सीट का पैसा दे रहे होते हैं। एक टिकट काउंटर के पास खड़े रहते हैं और
थिएटर में सीट बुक कर रहे हैं, उसका पैसा दे रहे हैं, ठीक है, टिकट का दे रहे होते हैं। और उसी समय उन्होंने देखा कि छोटा सा व्यक्ति उसके बगल में एक कोट पहना हुआ है, कॉलर ऑफ कर्ली फर, ऐसा कोट था जो कि फर का बना हुआ है, ठीक है। किसका फर? सॉरी कोई ये जो ऊनी कपड़ा जो होता है, फर का बना हुआ कपड़ा वो पहना हुआ था। एंड अ वन सिल स्किन कैप, और एक सिल स्किन कैप एक पहना हुआ था। कौन? वो लस्कॉफ के बारे में बात कर रहे हैं। बगल में वो आदमी खड़ा था जो कि सिल स्किन कैप पहना हुआ था और फर का बना हुआ रोएदार, फर क्या होता है? रोएदार कपड़ा होता है, ऊनी कपड़ा, उसी को फर बोलते हैं, वो पहना हुआ था, एक कोट। दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. और यह जो व्यक्ति उनके पास में खड़ा था, एडवोकेट सरजी के पास में जो खड़ा था, ये डरते हुए एक सीट के लिए टिकट मांग रहा था। कहाँ? गैलरी में एक सीट के लिए टिकट मांग रहा था काउंटर पे, और उसको कॉपर कॉइन्स में पे भी करता है, ठीक है, कॉपर कॉइन्स में उसको पे भी करता है। तो ये गैलरी वाले जगह के लिए वो डरते हुए एक सीट खरीद रहा है। कौन? ये आदमी, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लस्कॉफ रहता है। सो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट, ओके। So I have come to the end of this lesson today, of this lesson today means part 3, okay. We have still to complete the lesson. So I will come with the next part in the next class. Thank you.